you all must be knowing that this is the crash course with respect to the Punjab and Chhattisgarh. And before beginning the class, very good luck to all of you, है ना? And do solve all the state का pre-Y Qs before going to the exam. और जितने भी local laws हैं, don't leave any subject. जितने भी syllabus में paper is mentioned, do cover everything. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 70% कवर करके जाते हैं, 70% पढ़ के जाओगे तो 50% परफॉर्मेंस आएगी. If you will be covering 100%, then you can imagine कि 70 or 60% will be your performance. So do cover all the syllabus. With that zeal, okay बच्चे, we are going to begin the crash course of IPC, that is the Indian Penal Code. Of 1860, which for brevity I'll be calling it as the IPC. And I request all of you कि आपके पास दो basic document होंगे. One is your Bare Act. I believe all are having, be it online or offline one. क्योंकि I'll be directly referring the Bare Act और वहीं पर you have to see. And notebook if I ask you to write something or some case laws. ठीक है? तो दो चीजें होंगी आपके पास and you all must be having it, है ना? तो पढ़ते हैं IPC. So we will be seeing with respect to that first the basic information, and that basic information is with respect to the total sections and the total chapter. क्योंकि sometime they could directly ask you कि कितने sections हैं, कितने chapters हैं और क्या कोई part work है. तो IPC में there is no part, only the chapters and the sections are there. तो 511 sections are only there in the IPC, जिसको हमने रखा है in 23 chapters में. Enactment year for the IPC is 1860. पूरा नाम क्या है? 1860. You never know कि one side they'll give you the legislation का नाम, एक side enactment year, and they can ask you to match the following. Enactment year मतलब वो साल जिस साल वो कानून बनाया गया है. And now we are going to see the commencement date. Commencement date of any legislation का मतलब होता है commencement और enforcement date दोनों सेम होती है. It means such date जिस दिन से वो कानून लागू है. ये जरूरी नहीं है कि 1860 का कानून है तो from the first day itself it is implemented. It could be latter half of the year or from another year. तो commencement year IPC का it is 4 January 1862. क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में दे यूज टू मार्क द डेट 6 अक्टूबर. मार्केट में एक बुक भी आती है PYQ की, दे आर राइटिंग दिस आंसर एज द करेक्ट वन ऑल्सो. 6 अक्टूबर 1860 एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर. स्टिल आज की पब्लिकेशन में भी दैट बुक हैज दिस आंसर एज द करेक्ट वन. यू शुड बी नोइंग. अगर आप वही PYQ की बुक पढ़ के जाओगे एंड यू विल बी मार्किंग दिस तो आपका गलत हो जाएगा. एंड इफ नेगेटिव मार्किंग इज देयर यू विल बी फेचिंग दैट. क्योंकि नॉर्मली सेक्शन 1 में ऑफ एनी एक्ट में यू फाइंड कमेंसमेंट का डेट मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन में, बट इन IPC दैट इज नॉट देयर. दैट इज द वन रीजन फॉर मिसकंसेप्शन. बट you should be keeping in mind कि commencement or enforcement date is 4 January 1862 and for the part of Goa, Daman and Diu and for the Pondicherry which is today का Puducherry, यहाँ पे it is applicable from 4th October 1963. क्यों? क्योंकि उस वक्त in 1862 they were not the part of India. Goa was under the Portuguese people and Pondicherry was under the French people. तो गोवा, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी में IPC कब से लागू है? 1st October 1963. All this information are given in the official gazette. इसीलिए there is a confusion, but you people will not. What's the point? Assent date for the IPC is, assent date का मतलब होता है किस दिन वो बिल कानून बना है. You all must be knowing कि एक बिल कानून कब बनता है? When it got the assent. अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन है तो when it got the assent of the president. If we talk about स्टेट का लेजिस्लेशन तो जब गवर्नर की assent मिली होगी. लेकिन IPC तो ब्रिटिशर्स के समय का कानून है. There was no post of president and governor of that time. तो उस समय के then गवर्नर जनरल ने जब अपनी assent दी है, what happened?
शिवानी, शिवानी आप आना इधर। This is this date 6 October 1860 which you will be finding in your बैराक में in big bracket में. Got the point? Difference in ascent date and the commencement date. Now let us see with respect to the chapters, क्योंकि chapter की heading से and the domain there could be question in your exam directly कि पहले chapter में कितने section है और what is the heading of that. So let us see the very first chapter of the IPC which is the introduction. May I move to the next one? लिख लिया. Chapter 1 talks about that is the first chapter, talks about the introduction and it just have 5 sections. Section 1 to 5. Section 1 talks about title and extent. You never know कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 1 में लॉन्ग टाइटल है कि शॉर्ट टाइटल है और जस्ट द टाइटल एंड एक्सटेंट और शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट. तो यू हैव टू कीप इन माइंड इट इज जस्ट द टाइटल एंड एक्सटेंट. टाइटल में दे राइट इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860. अब एक्सटेंट देख लेते हैं. एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट का मतलब अप टिल व्हाट टेरिटरी दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज एप्लीकेबल. और आप सबको पता होगा कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ Article 370 of the Constitution of India and with the enactment of J&K Reorganization Act of 2019, this act has been made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and to the Union Territory of Ladakh. क्योंकि पहले क्या पोजीशन थी, अगर आप में से किसी के पास 2019 से पुरानी बेरट है और स्पेशली अक्टूबर की पुरानी एडिशन अगर होगी तो यू हैव अंडर सेक्शन 1 written, पहले ये पोजीशन थी. इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया अदर देन द स्टेट ऑफ J&K. लेकिन नाउ दिस वर्ड अदर देन द स्टेट ऑफ J&K दैट हैज बीन ओमिटेड, इसे हटा दिया गया है. और ये कहां लिखा है? व्हेन यू सी सीरियल नंबर 48 of table 1 5th schedule of the Jammu and Kashmir Reorganization Act जो कि लागू है 31 अक्टूबर 2019, जिसके आते ही जम्मू कश्मीर का स्टेट बाइफरकेट कर दिया गया अंडर 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. तो देयर इट इज मेंशन कि जितने भी सेंट्रल लॉज लिखे हैं उस टेबल में सबके सब लगेंगे इन दीज 2 यूनियन टेरिटरी. एंड विद रिस्पेक्ट टू द आईपीसी दे आर राइटिंग की अंडर सीरियल नंबर 48 कि अब ये वर्ड जो अदर देन द स्टेट ऑफ J&K है उसे हटा दिया गया है. तो अगर आपके पास पुरानी बेरट होगी तो प्लीज कट दोज लाइन, क्योंकि many people have old Barak and that is still there. It is your duty to cut that क्योंकि वो आपके पास पुरानी बेरट है. Got the point? And this is based on our government policy also. Government works on one nation one ration card, one nation one election they are planning, है ना. तो हो सकता है in your current affairs वाले पेपर में they could ask this thing because that is in news. One nation one election, there is a debate on it. तो section 1 we have completed. Now let us see the applicability of IPC. Applicability of IPC will tell us कि IPC लगता किस पे है. And if anybody have any problem do ask me. Online बच्चे by writing in the chat box and offline one by raising your hand. एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी हमें ये बताएगा कि आईपीसी लगता किस पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मर्डर डकैती सब पढ़ लेते हैं और ये नहीं पता कि उन पे आईपीसी लग भी रहा है या नहीं. दे हैव आस्क्ड इन एमपी जुडिशरी में छत्तीसगढ़ जुडिशरी में कि अ पर्सन गोज टू इंग्लैंड एंड देयर ही कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, तो क्या हम उस इंसान के ऊपर आईपीसी लगाएं? तो पहले ये तो पता कर लें कि आईपीसी लगेगा कब, देन ओनली विल बी इन पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो फॉर दैट टॉपिक वी हैव टू रीड दिस. This topic we have to read in 2 head. One is intra-territorial applicability and another is extra-territorial applicability. Intra-territorial applicability को पढ़ने के लिए we just have to cover one section, that is section 2 of the IPC. Extra-territorial applicability पढ़ने के लिए we need to cover 3 sections.
One is section 4 of the IPC, read with section 3 of the IPC, read with section 188 of the CRPC. क्योंकि CRPC is the procedural law on the part of criminal law. Procedural law and substantive law, the two kinds of the law. Substantive law वो laws होते हैं जो parties की rights और duties बताते हैं. तो IPC क्या substantive law है? Yes, IPC is the substantive law. The Constitution is substantive law. Procedural law मतलब ऐसे law जो कि हमें प्रोसीजर बताएं कि जो राइट्स और ड्यूटी सब्सटैंटिव लॉ में बताई गई है उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है. आईपीसी में लिख दिया गया कि फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर वी हैव द पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस. लेकिन डेथ सेंटेंस का मतलब क्या, हम एक्यूज को खड़े कर देंगे इन द सन विदाउट फूड एंड वाटर इन 55 डिग्री टेम्परेचर? नो, इट इज हैंगिंग एक्यूज बाय हिज नेक टिल हिज डेथ. कहां लिखा है? इन द सीआरपीसी. तो प्रोसीजरल पार्ट गवर्न्स दैट. CRPC, CPC and Indian Evidence Act are the example of procedural law. तो समझते हैं applicability. Section 2 says that which talks about intra-territorial applicability कि offense होना चाहिए by a person within India, then on that person IPC will be applicable. So we have to understand this term offense that is defined in section 40. Section 40 talks about कि if something is punishable under IPC, if anything is punishable under IPC, then that will be called as the offense. Otherwise meaning क्या है कि अगर कोई भी चीज IPC के अंदर punishable नहीं है तो क्या वो offense होगी for the purpose of IPC? Answer is no. And the best example is adultery. That is not punishable क्योंकि उसको हम constitutional unconstitutional declare करके that provision has been held to be violative of the fundamental right of the woman. So that has been held to be no more a criminal offense. तो offense होना चाहिए. Offense का मतलब thing which is punishable under IPC, and this thing means consequence of any human conduct. Consequence you have to see, and in this human conduct both is included, either the act or illegal omission. Not every omission. आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सपोज A is a बच्चा जिसका लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है and he is about to drown and he is calling save me and Vicky is standing who is a very good swimmer और विकी बोलता है वैसे कंपटीशन इतनी टफ है, जाने दो, मरने न दो. एक कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि नाउडेज पीपल अपनी लाइन बड़ी करने की बजाय दूसरों की लाइन काटते हैं. दैट इज मोर इजी वे. तो he has not saved that person and that person is killed by drowning. तो जो पढ़ के जाएगा वो विकी के ऊपर नो ऑफेंस की लायबिलिटी लगाएगा. जो नहीं पढ़ के जाएगा बोलेगा हाउ इज दिस काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही शुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ culpable homicide not amounting to murder. That is the wrong answer. क्यों? क्योंकि विकी has no duty to save this person and that is not illegal omission on him. हर omission के लिए आप liable नहीं होते हो. अगर आपके घर के सामने एक beggar रहता है और वो आपसे खाना मांगता है and you are not giving him and that person dies because of hunger, तो क्या आपकी कोई liability होगी? नहीं, because not you are not legally bound to support that. But if somebody who are legally bound to support उसको if you are not doing, then only it is called as illegal omission. इसीलिए आईपीसी में omission के लिए liability नहीं होती है, rather for illegal omission. And what is illegal omission? That is provided in section 43 which talks about कि something which is your legal duty and if you omit that then it is said कि you are legally omitting to do that. And if there is illegal omission then only there will be your liability. And that offense is done by a person. As the word person is used, इसका मतलब accused Indian भी हो सकता है या foreigner भी हो सकता है. Nationality of the person is no concern. लेकिन होगा कहाँ? इंडिया के अंदर. जैसे श्रद्धा मर्डर केस में offense हुआ इंडिया के अंदर. That's why that person is booked under IPC. निर्भया केस ले लो, हैदराबाद गैंग रेप केस लो, अहमदाबाद केस. Why all in cases में IPC was invoked? Because offense was happened in India. Suppose करो if one of you बच्चे नहीं, अमन जो है वो पाकिस्तान जाता है and he is there in Pakistan और पाकिस्तान में रहकर ही abates the commission of offense in India, तो क्या हम अमन के ऊपर IPC का चार्ज लगाए under any offense or not? He will be liable क्योंकि location of accused is no concern.
एक्यूज इंडिया में रहकर ऑफेंस करे या बाहर में, उसकी वजह से अगर ऑफेंस इंडिया में होता है, ही विल बी लायबल, और इंडिया के अंदर इंडियन एम्बेसी विल बी इंक्लूडेड। सपोज करो इफ आकाश qualifies UPSC with law optional and he has got IFS, or Akash and one more person, let it be Apurv, both have qualified UPSC with law optional and they are placed in the Indian embassy जो कि इजराइल में है, और वहां पर what this person did, they will be giving the exam next year also because they want IAS in their mind। ये तो कंपटीशन है कि आप इंप्रूव करने के लिए, अपना होम स्टेट पाने के लिए आप एग्जाम देते रहते हो। सपोज करो बच्चे, नेहा कौन से स्टेट का यू वांट टू गिव? फोकस स्टेट छत्तीसगढ़, और यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली। कहाँ का? दिल्ली। तो सपोज करो छत्तीसगढ़ का एग्जाम देती है नेहा और क्वालिफाई कर जाती है, फिर भी वो डीजीएस का एग्जाम देगी, शी इज वेल अलाउड टू सिट बिकॉज दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। वन सिलेक्शन विल नॉट बार यू, और एक सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरे इंटरव्यू में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। They will be knowing you are set officer, तो बस आपका हालचाल पूछेंगे एंड they will be selecting you। This happens, एक बार अगर खुल जाती है किस्मत तो everywhere you will be called off। So go for any state, don't choose कि भाई only छत्तीसगढ़, only पंजाब। Go for any state, whatever will come in your way, क्योंकि beggars are not choosers, ठीक है। So अगर अपूर्व ने आंसर लिख रखा है सारे सॉल्व करके प्री क्यू के, and what this Akash is doing, he has committed the offense of theft। कहां पर? इंडियन एम्बेसी विच इज लोकेटेड इन इजराइल। तो क्या हम आकाश के ऊपर आईपीसी लगाएं एंड दैट टू बी पार्ट ऑफ पर्व्यू ऑफ सेक्शन 2? आंसर इज यस, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जिस भी कंट्री की एम्बेसी होती है वो उसका पार्ट होती है। लोकेशन ऑफ द एम्बेसी इज नो कंसर्न। इंडियन एम्बेसी यूएस में हो, ब्राजील में हो, एवरीवेयर इट इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन पीनल कोड लॉ विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर इसी फैक्ट में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि सपोज करो इंस्टेड ऑफ इंडियन एम्बेसी they got the opportunity to go in the Australian embassy, जो कि located है in the चाणकपुरी area of the Delhi, और वहां पर जाकर सपोज आपस में इनकी लड़ाई हो जाती है। अभी इन लोगों ने मर्डर का ऑफेंस पढ़ा नहीं है, तो दे आर नॉट क्लियर, culpable homicide not amounting to murder and what happened, Apurv have slapped Akash over a concept। कहां पर मारा? कहां पर voluntarily hurt cause किया? ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर। तो क्या सेक्शन 2 आप लगाओगे? No, because that is done in Australian embassy, तो section 2 will not be applicable। 4 लगेगा, that is the case, वो भी देखेंगे है क्या। तो section 2 I believe it is clear to you। अब देखते हैं section 4 which talks about extra territorial applicability। सपोज करो आप में से कोई मीनाक्षी जो है वो इंग्लैंड जाती है और बोलती है कि अब तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है कि कोहिनूर हीरा मैं ले आती हूँ, अपना ही तो है। तो इंग्लैंड में जाती है क्वीन विक्टोरिया सेकंड के लास्ट राइट सेरेमनी में, देयर जाकर शी हैज डन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ऑफ दैट कोहिनूर हीरा। तो फैक्ट ये है कि मीनाक्षी एन इंडियन सिटीजन, शी हैज कमिटेड द थेफ्ट ऑफ द कोहिनूर हीरा। तो क्या हम मीनाक्षी के ऊपर आईपीसी लगाएं? तो उसको आंसर करने के लिए वी हैव टू रीड 4 सबसेक्शन 1 व्हिच सेज दैट कि अगर इंडिया का कोई नागरिक है, इफ अ एक्यूज इज देयर एंड दैट एक्यूज इज अ इंडियन सिटीजन, यानी 4 सबसेक्शन 1 केवल इंडियंस पे लगेगा। अगर एक इंडिया का नागरिक है, इफ ही गोज इन अ फॉरेन लैंड में ऑफेंस करता है। हाउ आई एम सेइंग फॉरेन लैंड? आपके बैरक में जो वर्ड लिखा है ना, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अंडर द सेक्शन डिटरमाइंस दैट दिस इज सम टेरिटरी व्हिच इज बियॉन्ड इंडिया। विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब होता है फॉरेन लैंड। तो अगर कोई एक्यूज जो कि इंडियन है, मी यू और एनीबडी हैविंग द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया, वो अगर विदेश में जाकर ऑफेंस करता है तो दैट पर्सन विल बी लायबल अंडर आईपीसी। तो मीनाक्षी जाकर अगर कोहिनूर हीरा चुराती है, इवन दो इट इज अर्थ, शी विल बी लायबल अंडर आईपीसी एज पर 4 सबसेक्शन 1। देखते हैं 4 सबसेक्शन 2। 4 सबसेक्शन 2 सेज दैट कि इफ अ ऑफेंस इज डन बाय अ पर्सन इन अ शिप और एयरक्राफ्ट व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, लोकेशन ऑफ दिस शिप ऑफ एयरक्राफ्ट इज इमैटेरियल। कहीं पर भी हो दैट मेक नो डिफरेंस बिकॉज द वर्ड इन योर बैरक इज रिटन wherever it may be। wherever it may be, it signifies that the location of ship or aircraft does not make any difference। again the word person is used, it means accused can be an Indian citizen or a foreign national। तो होगा क्या? ऑफेंस होगा बाय अ पर्सन जो कि इंडियन हो सकता है या फॉरेनर। कहां पर होगा? एक ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, कहीं पर भी हो, दैट मेक नो डिफरेंस। सपोज करो बच्चे वर्ड से नहीं, रवि जो है, ही गोज टू
यूक्रेन, और वहां से फंस जाता है, वॉर शुरू हो जाता है, अभी तक दे आर लड़ी रहे हैं, है ना, तो लड़ाई का कुछ होता नहीं है फायदा। सी दैट रशिया यूक्रेन वॉर, इफ दीज पीपल आर ऑन वॉर और गवर्नमेंट हमारी अपने नेशनल को बुलाकर लेकर आ रही है, सपोज करो दिस इज रवि सिटिंग इन द एयर इंडिया का फ्लाइट एंड नेक्स्ट टू हिम आर सीट इज वैकेंट एंड नेक्स्ट द चाइनीज नेशनल एक्स इज सिटिंग, इनकी बात में आपस में शुरू हो जाती है। व्हेन इट इज वाज इन द एयर स्पेस ऑफ ईरान, तो रवि आस्क्ड दैट एक्स कि भाई तुम लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे वुहान में लॉकडाउन लगा हुआ है, व्हाई यू पीपल आर नॉट सपोर्टिंग WHO की पता चले कि ये कैसे ट्रांसमिशन हुआ इन द ह्यूमन बॉडी, ओरिजिन तो पता चल गया कि बैट है, बट हाउ दैट ट्रांसमिशन इज डन इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट यू पीपल आर नॉट सपोर्टिंग। तो चाइनीज बोलता अच्छा यू इंडियन विल टीच अस, अच्छा हुआ बहुत सारे भारतीय मर गए इन द सेकंड वेव। अब तो रवि का पारा इज टू हाई, नाउ व्हाट ही डिड, he stabbed X and X is killed. Fact is, an Indian citizen has killed a Chinese national. कहाँ पे? एयर इंडिया की फ्लाइट में, when it was there in the air space of Iran. तो let me know कि क्या हम रवि के ऊपर IPC लगाएं? That to be section 4 subsection 2 के थ्रू? Yes. If same Ravi is there, बस एग्जाम्पल है, if he goes to UAE और यहां पर जाकर एक्ट ऑफ अडल्ट्री करता है, एक्ट ऑफ अडल्ट्री का मतलब हो गया डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ मैरिड वुमेन, नॉट द वाइफ ऑफ दिस मैन, विद द कंसेंट ऑफ दिस वुमेन। तो क्या हम रवि के ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लगाएं? आंसर है नहीं, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन ए टू सेक्शन 4 सेज दैट कि जो भी ऑफेंस एक्ट किया जा रहा है इंडिया के बाहर, आपका टेस्ट क्या होगा कि अगर वही चीज इंडिया के अंदर किया जाएगा तो क्या वो पनिशेबल है अंडर आईपीसी, क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट है। एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट 497 हैज बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, एंड दैट इज नो मोर अ ऑफेंस, है ना, जोसेफ साइन के केस में, सो ही विल नॉट बी लायबल। 4 सबसेक्शन 3 सेज दैट कि अगर कोई ऑफेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है बाय अ पर्सन, बट द लोकेशन ऑफ दिस पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर रिसोर्स इज आउटसाइड इंडिया, यानी जिस वक्त एक्यूज ऑफेंस कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है, उसका लोकेशन इंडिया के बाहर होना चाहिए। अगेन दैट वर्ड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया इन योर बैरक सिग्निफाइज दैट ही इज ऑन सम फॉरेन टेरिटरी। समझते हैं थ्रू द एग्जांपल। सपोज करो हमारी इंडिया ने एक वैक्सीन बना ली है जो कि मंकी पॉक्स पे 100% एप्लीकेबल है, एंड दिस फैक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए जो कि एक चाइनीज नेशनल है, एंड ही यूज्ड टू रिसाइड इन पेरिस, और व्हाट ही डज, दिस चाइनीज नेशनल रिसाइडिंग इन पेरिस, यहां पर रहते हुए ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ दिल्ली से सारे डेटा को हैक कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू द वैक्सीनेशन ऑफ मंकी पॉक्स। तो क्या हम इसके ऊपर ए के ऊपर आईपीसी लगाएं बाय द परव्यू ऑफ 4 सबसेक्शन 3? आंसर इज यस। तो 4 सबसेक्शन 3 इज ओवर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंडिया के बाहर ऑफेंस हो रहा है तो इंडिया की कोर्ट्स के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहां से आता है? तो दैट का आंसर इज गिवन इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 सेज दैट कि अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर किया गया है, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो लीगल फिक्शन माना जाएगा इन दैट सिचुएशन। लीगल फिक्शन का मतलब सपोजिशन ऑफ लॉ अगेंस्ट फैक्ट, फैक्ट कुछ और होगा और कानून अपने निगाहों में कुछ और प्रिज्यूम करेगा, इसी को हम बोलते हैं लीगल फिक्शन। फैक्ट इज कि ऑफेंस इज डन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, लॉ क्या मानेगी कि ऑफेंस कहां हुआ है? इंडिया के अंदर। योर बैरक लाइन सेज दैट इट विल बी टेकन इन द सेम मैनर एज इफ द ऑफेंस इज डन विद इन इंडिया। तो जब कानून ने ही ये मान लिया कि इंडिया में ऑफेंस हुआ है तो इंडिया की कोर्ट्स के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आ जाएगा। सपोज करो मीनाक्षी जब इंग्लैंड जाती है और वहां पर जाकर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट करती है, और उसके बाद मीनाक्षी बच्चे आप कौन से स्टेट में कैसे हो? हरियाणा। एंड शी अराइव्स, गुड़गांव में तो एयरपोर्ट नहीं है, हरियाणा के कोई जगह पे जहाँ पे देयर इज एयरपोर्ट, नो वे, ओके चलो ले लेते हैं कि जयपुर की एयरपोर्ट पे शी अराइव्स क्योंकि वहां वाली फ्लाइट सस्ती थी। The fact is, she has gone to England. There he has committed the offence of theft, and now she arrives at the Jaipur airport. जैसे ही उतर ही रही होती है तब तक पुलिस आकर इसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि which court have jurisdiction to try her. क्या दिल्ली की कोर्ट, because Delhi is the capital of India, or it will be the Jaipur का कोर्ट because she is arrested there, or
इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि जहां पे मना है वहां पे ट्राई करें, और इट विल बी द नोटा का ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। एंड वेरी यू पीपल आर टू ब्राइट स्टूडेंट, यस यस वेरी राइट बच्चे। कौन कहता है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना? ऑल द 3 स्टेजेस विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना? उसके बाद बस भूलना नहीं है, दिस इज ओनली वन कंडीशन। तो 188 गिव्स अस द आंसर ऑफ द सीआरपीसी। 188 ऑफ द सीआरपीसी हमें ये बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस किया गया है आइदर बाय एन इंडियन ऑन हाई सीज और अदरवाइज, हाई सीज लाइज इन द जुरिडिक्शन ऑफ नो कंट्री और अदरवाइज एल्सवेयर, या ऑफेंस इज डन बाय अ फॉरेनर इन सच शिप और एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो सबसे पहले कानून क्या मानेगा कि ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ है, एंड दैट प्लेस हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई दैट ऑफेंडर वेयरएवर दैट अक्यूज इज फाउंड। दिस इज द की वर्ड कि जहां पे वो अक्यूज पहली बार मिलेगा उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आएगा। और कहां पे मीनाक्षी हैज बीन फाउंड? जयपुर एयरपोर्ट, तो जयपुर विल बी द राइट आंसर। एंड दिस दे हैव आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम में। सी सो सिंपल, है ना, टू आंसर इट। नाउ सेक्शन 5 हमें ये बोल रहा है कि जो म्यूटिनी वगैरह के लॉज होते हैं, डेजर्शन वाले लॉज होते हैं, आर्मी, एयरमैन, सेल, मतलब सारी विंग को, डिफेंस विंग को कवर करने के लिए, उस पे आईपीसी विल नॉट बी इफेक्टिव। वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। जैसे आर्मी में पनिशमेंट देने के लिए सबसे बड़ा लॉ है कोर्ट मार्शल लॉ, तो क्या कोर्ट मार्शल लॉ नहीं चलेगा? नो, दैट विल रन पैरेलली विद द आईपीसी, दैट इज गिवन इन सेक्शन 5। तो वी आर डन विद चैप्टर 1 व्हिच इज द इंट्रोडक्शन। नाउ चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट जनरल एक्सप्लेनेशन, और बाकी में देखोगे बहुत सारे एक्ट्स में, कोड में यू फाइंड डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज होती है, जैसे आप कोड में देखोगे या एक्ट में, तो मेनली सेक्शन 2 अदर देन हिंदू लॉज, सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। लेकिन आईपीसी में ऐसी कोई डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, लेकिन वेरियस टर्म्स आर डिफाइंड इन सेकेंड चैप्टर। और आपको एग्जाम में पूछा भी है, पंजाब में दे हैव आस्क्ड रॉन्गफुल गेन का मतलब, रॉन्गफुल लॉस का मतलब, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब 2017 में ही ओनली दे हैव आस्क्ड, है ना? तो now we are going to see this second chapter which is from section 6 to 52A. Section 6 talks about कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंस हैं और जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं सब पे, अच्छा बच्चे आई एम रिपीटिंग, बच्चे 188 ऑफ द सीआरपीसी ये कहता है कि अगर सपोज करो आप ही हो, आप जाकर फॉरेन में कोई ऑफेंस कर देते हो, या कोई फॉरेनर है वो इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में ऑफेंस करता है, तो सबसे पहले कानून ये प्रिज्यूम करेगा कि ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस कोर्ट में हम उसका ट्रायल करें, दैट इज अ कंसर्न और नॉट, कि कहीं भी हम ट्रायल करा देंगे? नो। तो दैट का आंसर इज कि जहां पर वो एक्यूज पहली बार मिलता है आफ्टर द कमिशन ऑफ ऑफेंस, दैट प्लेस हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई दैट ऑफेंडर। तो सपोज इफ यू आर देयर और आप जाते हो यूएस में, और यूएस में जाके यू किल समबडी। बच्चे आप कौन से स्टेट से हो? राइट टू मी सो दैट आई कुड टेक यू इन द एग्जांपल। यस, ओके, यूपी से। चलो, आप लखनऊ एयरपोर्ट पे अराइव करते हो और वहीं पे आपका अरेस्ट हो जाता है, तो कौन सी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा कि आपका ट्रायल कराएगी? आप सबको पता होगा कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द प्रोसीडिंग। सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, देन इट इज द स्टेज ऑफ इंक्वायरी। व्हेन इंक्वायरी इज ओवर, देन द स्टेज ऑफ द ट्रायल। ये आप सीआरपीसी में पढ़ोगे, जो कि प्रोसीजरल पार्ट है। तो अब ट्रायल कहां कराया जाए आपका, दिस इज द कंसर्न। उसका आंसर 188 ऑफ द सीआरपीसी इज गिविंग बच्चे। तो इट विल बी द, हाँ वर्षा वेरी राइट, इट इज द लखनऊ का कोर्ट। गॉट द पॉइंट? नहीं आया हो, राइट टू मी, आई विल एक्सप्लेन। आ गया हो देन ऑल्सो राइट, सो दैट आई कुड नॉट रिपीट इट। ओके बच्चे, नैना। नाउ 6 देखते हैं। 6 ऑफ द आईपीसी सेज दैट every offense under IPC or every illustration under IPC
जितने भी आईपीसी के अंदर ऑफेंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन है, वो सब जो होंगे वो सब्जेक्टेड होंगे विद द चैप्टर 4. चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशन जहां पर अगर आपका केस फॉल करेगा तो बड़े ऑफेंस की जगह छोटा ऑफेंस नहीं, कोई ऑफेंस नहीं होगा, नो लायबिलिटी एट ऑल. इसीलिए सारे लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि खुदन कास्ता अगर कोई ऑफेंस हो गया तो बचने का 36 देयर अंडर चैप्टर 4. तो बार बार नहीं लिखेगा हर ऑफेंस के नीचे कि भाई अगर आप चाइल्ड हु इज लेस देन 7 years इफ ही डज एनी एक्ट इट विल नॉट बी एन ऑफेंस इन हिम. क्या मर्डर के नीचे ऐसा लिखा है? थेफ्ट के नीचे ऐसा लिखा है? नहीं. लेकिन एवरी सेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू दिस. बार बार लिखेगा तो वॉल्यूमिनस होगी और आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा एंड इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज. तो इसीलिए सेक्शन 6 दे आर राइटिंग कि एवरी सेक्शन, every illustration under IPC that is subjected to chapter 4 which talks about general exceptions. Then we have to see कि क्या IPC में जो टर्म डिफाइन एक बार किए गए हैं throughout the code that will be the same meaning of that term. Answer is yes. कि अगर कोई भी टर्म सपोज करो dishonest intention which is the form of mens rea for many offense like extortion, theft, तो एक बार 24 में डिफाइन कर दिया तो क्या पूरे बैराक में डिसऑनेस्ट इंटेंशन जहां रखी होगी वही होगा? यस, दैट इज रिटन इन सेक्शन 6, सॉरी सेक्शन 7 कि वॉट एवर द टर्म और द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड वंस, तो पूरे एक्ट में उसकी मीनिंग वही ली जाएगी वेयर इट इज डिफाइंड उसके अकॉर्डिंग. ही इंक्लूड शी. इसीलिए when I teach IPC और कोई बच्चा नाम कभी कभी ऐसा है which appears to be neutral and instead of saying मान लो वो गर्ल है I say boy रेफरेंस में, तो बहुत सारे बच्चे ऑफेंसिव फील कर जाते हैं कि मैम मैं तो लड़की हूँ, आप मुझे बोल रहे हो ही. so I get the defense from here. he include she also. कहाँ लिखा है? अंडर सेक्शन 8 कि ही के अंदर she is also included. है ना. वैसे भी क्राइम का नो जेंडर. चंडीगढ़ एमएमएस केस इज अ गुड एग्जांपल दैट मेन गर्ल इज द एक्यूज्ड देयर. तो नाउ डेज तो गर्ल्स आर आल्सो रेजिंग हाई लेवल में क्राइम के सेंस में, है ना. बट यू पीपल विल नॉट डू, है ना, क्योंकि फॉर्म में पहले स्टेज में भरना होता है कि क्या कोई एफआईआर आपके खिलाफ पेंडिंग है या क्रिमिनल केसेस. और अगर गलत इंफॉर्मेशन भी दोगे तो दे हैव द सॉफ्टवेयर. इसीलिए जब आप अपॉइंट होते हो तो प्रोबेशन पे आप अपॉइंट होते हो 1 साल 1.5 साल, दैट पीरियड इज प्रोबेशन, जहां पे चेक होता है सारे डॉक्यूमेंट, सारा वेरिफिकेशन. ऐसा तो नहीं कि क्लेम कर लिया रिजर्वेशन एंड यू आर नॉट फॉलोइंग इन इट. ऐसा तो नहीं 12वीं का पास का सर्टिफिकेट लगा, पता चला कि 2 साल फेल. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, है ना. तो डोंट गो फॉर इट. नाउ लेट अस सी कि मैन और वुमेन का मतलब क्या होता है. मैन और वुमेन का मतलब which they have asked in the exam. Man का मतलब a male human being and woman का मतलब female human being of any age. ये any age एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या कोई पर्टिकुलर एज है, और जो नहीं पढ़ के जाता है वो रामबाड़ एज 18 साल लगाकर चला आता है ना. एंड दैट इज द रॉन्ग. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या चीज है, क्या चीज कंसिडरेशन में. वन ऑफ द एग्जाम में अभी पूछा गया है कि एपीयू के एग्जाम में कि जो एज चेंज हुई है, प्रपोज्ड एज ऑफ अ हिंदू गर्ल मैरिज, दैट इज व्हाट. हाँ, तो इट इज 21, 18 और 23 और 24. तो बहुत सारे लोग ये दिमाग में रख लिए हैं कि हिंदू गर्ल की मैरिज की जो एज है वो बढ़ के 21 साल हो गई है. बढ़ के हुई नहीं है, कंसिडरेशन में है. बहुत सारे लोग बोलते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड अब ऑफेंस नहीं है. दैट इज नॉट द केस, दैट इज इन कंसिडरेशन. हटाने की बात हो रही है, तो वो डिफरेंस होता है अंडर कंसिडरेशन एंड व्हेन द लॉ इज देयर. तो देखो एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं. डोंट गो सिंपल एग्जाम में देखे अच्छा क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया एंड दे हैव मार्क दैट, और पता चला कि पूछ रहा है प्रपोज्ड एज और लिख कर आए 18 साल की एज. दैट इज रॉन्ग, है ना. यू ऑल्सो डू द सेम थिंग. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग एंड रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. ये नहीं कि पहला ऑप्शन दिखा और यू आर टू हैप्पी कि ये तो इलस्ट्रेशन मैम ने पढ़ाया था, वी हैव रेड फ्रॉम द आईपीसी बैराक. हो सकता है उससे बेस्ट ऑप्शन इज वेटिंग जो आप छोड़ रहे हो. तो डू गो फॉर रीडिंग ऑल द ऑप्शन एंड देन गो फॉर मार्किंग दी OMR, या डिजिटल है तो दैट वेज. तो सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट मैन एंड वुमेन, जिसका मतलब होता है एनी एज.
फिर उसके बाद दे यूज टू आस्क पर्सन, कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है, क्योंकि क्राइम का वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज कि देयर मस्ट बी अ पर्सन। तो पर्सन को याद करने के लिए द ट्रिक इज एबीसी। ABC are included in person. A stand for association of person, B stand for body of person and C stand for company. तो सब आते हैं इसमें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन और कंपनी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड तो इनको लीगल पर्सन बनाता है, और इस पर्सन की डेफिनेशन में मतलब बोथ काइंड ऑफ पर्सन आते हैं, दो तरीके के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे नहीं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वन इज द नेचुरली ह्यूमन बीइंग, और द जिसको कि हम सब आएंगे, द नेचुरल ह्यूमन बीइंग जिसको कि नेचर ने बर्थ दिया है, एंड अनदर इज द लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब जिसको लॉ ने बर्थ दिया है, आइदर थ्रू सम इनैक्टमेंट जैसे कंपनी लॉ बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, और मंदिर में रखी मूर्ति, और मॉस्क, और आदि ग्रंथ साहब, केस लॉ में बोला गया कि ये सब चीजें आर द लीगल पर्सन। तो बोथ काइंड ऑफ पर्सन इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी। फिर देखते हैं कि आपके एग्जाम में जैसे यहाँ पे तो नहीं पूछा है, अभी आरजेएस का रिजल्ट आया था ना, तो वहां दे हैव आस्क्ड कि ब्रिटिश इंडिया वर्ड किस अमेंडमेंट से दे हैव रिमूव्ड इट। तो जो टर्म ओमिट हो गया है, स्पेशली एज योर पीपल आर गोइंग टू गिव प्रीलिम्स का एग्जाम, तो यू हैव टू कीप द अमेंडमेंट का ईयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एग्जाम देकर आते हैं तो दे यूज्ड टू आस्क कि मैम ये क्यों पूछा है। तो पीटी इज अ एलिमिनेशन राउंड बच्चे, इतने सारे 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म आएंगे तो कैसे बाहर निकालेंगे, सीट्स इज वेरी फ्यू, 10% या 15% ऑफ द टोटल वैकेंसी दे हैव टू टेक, तो हाउ दे विल बी एलिमिनेटिंग पीपल। दिस इज द ओनली रीजन कि दे ऐसा पूछना चाहते हैं कि बच्चों को फैक्चुअल डाटा दिमाग में ना हो, और द कॉन्सेप्चुअल वन। तो डू प्रीलिम्स के लिए स्पेशली डू गो फॉर रीडिंग द अमेंडमेंट। जैसे कि अगर दे विल आस्क यू कि ब्रिटिश इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड किस एक्ट से हटाया है, तो यू विल बी राइटिंग 1937 इज द ईयर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 15 में हटा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब हटा दिया गया तो क्वेश्चन क्यों आया, दे यूज्ड टू आस्क इन ऑर्डर टू चेक हाउ करेक्ट यू आर विद रिस्पेक्ट टू द फैक्चुअल डाटा आल्सो। तो व्हाटएवर हैज बीन एलिमिनेटेड दैट आल्सो यू हैव टू कीप इन पॉइंट, व्हाटएवर न्यू थिंग हैज बीन इंसर्टेड सब पूछा जाएगा, ये नहीं कि नया वाला पढ़ लिया और पुराना वाला छोड़ दिया। मेंस में कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में दे कुड आस्क एनीथिंग। 303 हटाया जा चुका है इतने साल पहले, दे हैव आस्क्ड के अंदर पनिशमेंट कितनी लिखी है अगर एक लाइफ कॉन्विक्ट मर्डर करेगा तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, डू गो फॉर एवरी बेयर एक्ट। तो यू हैव टू कीप की 15 और 16 विच इज अबाउट द ब्रिटिश इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको एबॉलिश किया गया है बाय द एक्ट ऑफ 1937। देन यू हैव टू रीड द वर्ड गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे हम ऑफेंस पढ़ेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब दोनों गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एज रिटन इन सेक्शन 17। 18 टॉक्स अबाउट कि हमारी इंडिया क्या होती है, और इंडिया में आपकी बेयर एक्ट में दिस इज द मिस्टेक ऑफ द लेजिस्लेचर कि लिखा हुआ है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग, लिखा है ना, क्योंकि लेजिस्लेचर की फॉल्ट है। तो आप सब अपनी बेयर एक्ट में एक्सक्लूडिंग को काटोगे और वहां क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग। गॉट माई पॉइंट, क्योंकि आईपीसी में लेजिस्लेचर ने 3-4 मिस्टेक रख रखी हैं विच इज अ ब्लंडर यू कैन से। तो एग्जाम में अगर आएगा कि इसका मतलब क्या है, तो व्हाट यू विल बी, इंडिया मतलब द होल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। तो 18 में सॉरी, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK यू हैव टू राइट। आप सब जो एग्जाम देने जा रहे हो तो बनोगे क्या, यू आर गोइंग टू गिव द प्रीलिम्स का एग्जाम आइदर ऑफ छत्तीसगढ़ और ऑफ पंजाब, तो आप बनोगे क्या, जज साहब। तो जज कहां डिफाइंड है, 18 में। 19 में तो क्या है, 18 में जज है, 19 में जज, यस वेरी राइट। 18 में क्या है, इंडिया, यस। तो इंडिया में यू पीपल हैव डन आई बिलीव द करेक्शन। 19 में जज बनोगे, और जज बनने के बाद कहां जाओगे, यस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां डिफाइंड है, जब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओगे जज बन के, तो यू विल बी सेट एज अ पब्लिक सर्वेंट ही तो कहलाओगे आप। तो पब्लिक सर्वेंट इज गिवन इन 21। तो जज इज गिवन इन 19
and court of justice is given in 20 and 21 talks about पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि दे यूज टू आस्क कि क्या म्युनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है, क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, क्या जज पब्लिक सर्वेंट है। तो यू हैव टू कीप दैट लिस्ट इन योर माइंड, ठीक है। तो डू गो फॉर रीडिंग दैट 21 का लिस्ट। जज का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज। जैसे आप जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो होगा क्या कि यू विल बी सेट एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन। लोअर जुडिशरी का एग्जाम दोगे तो, हायर का दोगे तो एडीजे। तो इफ यू आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज तो जज होगा। या अगर आप लॉ किसी कानून के द्वारा एम्पावर्ड हो कि अदर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डेफिनेटिव जजमेंट दे सको। डेफिनेटिव जजमेंट मतलब ऐसा जजमेंट जिसको कि कंफर्म किया गया है अगर अपील में गए तो, या जिसके अपील में गया ही नहीं गया, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेटिव जजमेंट। इफ यू हैव दैट पावर given through the law to give a definitive judgment either in civil case or criminal case, then you are called as a judge। और होता है ना बहुत सारे, जैसे अभी they have upheld that EWS reservation by 5 judge bench, तो वो body of judges है ना, तो body of judges मतलब plurality of judges, that will also come under the term judge। और if these people are, जैसे आपको एक illustration में जो important चीज है, नहीं बच्चे यू डोंट हैव टू मार्क, यू हैव टू राइट इंक्लूडिंग। कभी नहीं पूछेंगे इतना ब्लंडर, बिकॉज दो नो कि दिस इज द बेसिक फॉल्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यू हैव टू राइट। या अगर मान लो देशवाल बच्चे इस तरह लिखा है कि एज ऑफ नाउ सेक्शन 18 कंटेन्स द वर्डिंग, एज ऑफ नाउ अगर पूछते हैं इस तरह का कि अभी इस तरह लिखा हुआ है, तब आप लिखोगे कि इट इज एक्सक्लूडिंग। लेकिन इफ दे आर आस्किंग लिटरल 18 में कि इंडिया मीन्स क्या, इंक्लूडिंग जेएनके, एक्सक्लूडिंग जेएनके, और इट डिपेंड्स या नन ऑफ द अबव, तो इट विल बी इंक्लूडिंग। गॉट द पॉइंट? तो आपको क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी होगी बच्चे, है ना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही करना होगा। जैसे इफ यू गो फॉर रीडिंग इलस्ट्रेशन डी ऑफ सेक्शन 19, तो वहां पे लिखा है एक मैजिस्ट्रेट साहब हैं जिनके पास बस केवल पावर है कोमिटल की, कोमिटल की पावर है। तो क्या इन मैजिस्ट्रेट साहब को हम जज माने? अ पर्सन हु हैज ओनली जुरिडिक्शन टू कमिट अ केस। आपको जब सीआरपीसी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन इज द हाईएस्ट क्रिमिनल का कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होता है अनलेस इन 2 केसेस। इसके पास हमेशा केस कमिट होकर आते हैं, यानी दूसरों केसेस इसे कमिट करके भेजती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कमिटल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। तो एक मैजिस्ट्रेट के पास बस इतनी पावर है कि वो केस को कहां भेज सकते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो क्या हम बोले कि ही इज अ जज? आंसर इज नो, क्योंकि आपका टेस्ट क्या है? आप ये देखोगे कि ये इस बच्चे कि आप ये देखोगे कि क्या ही हैज द पावर टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। कहां है? यहाँ तो जजमेंट की पावर इनके पास है ही नहीं, ही हैज ओनली कॉमिटल पावर। इसीलिए इन योर इलस्ट्रेशन डी दे आर राइटिंग दैट कि अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज द पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। समझ में आ गया? बाकी में ऑल आर जज, क्योंकि दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। 21 आई टोल्ड यू विल बी सीइंग। बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हैं जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट मैटर। चोरी की बात कर लो, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लो, तो देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। फॉर दैट वी हैव टू सी सेक्शन 22। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब दे आर राइटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी मींस corporeal property of every description other than the land, things attached to earth, or something which is fastened, जो कि परमानेंटली अटैच है, उसके साथ परमानेंटली बांधी हुई कोई चीज, that will also come under the term, that will also not come under the term movable property. So they are writing movable property, corporeal property of every description other than following, other than land, things attached to earth, or something which is permanently fastened to anything which is attached to earth.
और आपके एग्जाम में बहुत सारे आंसर्स गलत भी आते हैं, इसीलिए आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है ना। हाँ हाँ, यस बच्चे, इफ ही हैज ओनली पावर टू कोमिटल देन ही इज नॉट बी अ जज, है ना, बस केवल कोमिटल की पावर, देन ही विल नॉट, बट इन रियलिटी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर होती है कि वो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक की फाइन दे सकता है। दिस ऑल यू विल बी रीडिंग अंडर द सीआरपीसी, है ना। पूछते हैं कि क्या सीजीएम कोर्ट 7 साल से ऊपर की सजा दे सकता है? नो, नॉट। सेशन जज सब दे सकता है प्रोवाइडेड दैट द डेथ सेंटेंस शुड बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। दैट ऑल यू विल बी रीडिंग, है ना। चैप्टर 2, 3 ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी लिखा है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मतलब सच प्रॉपर्टी विच कैन बी परसीव बाय फिजिकल सेंस ऑर्गन। आपके पास 6 सेंस ऑर्गन है, उसमें से किसी भी सेंस ऑर्गन से अगर आप परसीव कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 काइंड की होती है, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल थिंग। तो सच प्रॉपर्टी विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उस फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी में लैंड अटैच टू अर्थ और विच इज परमानेंटली फास्टन टू समथिंग विच इज अटैच टू अर्थ को हटा दिया है, क्योंकि ये सब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यस, सो 22 इज ओवर। नाउ लेट अस सी 23 विच टॉक्स अबाउट, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग wrongfully and losing wrongfully क्या है? 23 defined 4 term. One is wrongful loss and another is wrongful gain. तो wrongful loss और gain है, तो पहले इसको देख लेते हैं। लॉस हो रहा होगा wrongful loss में, तो it is a loss of what? Property. As the word wrongful is written, तो ये लॉस कैसे हो रहा है? अनलॉफुल मीन से हो रहा है। और जो पर्सन लूज कर रहा है ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड फॉर दैट। क्या ऐसा है लॉस जिसको हो रहा है? नो, द पर्सन हु इज लूजिंग ही इज लीगली इंटाइटल्ड फॉर दैट। लेट मी राइट, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। देखो, रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है लॉस होना प्रॉपर्टी का, जिस इंसान, एज द वर्ड रॉन्गफुल इज रिटन, तो वो कैसे लॉस होगा? अनलॉफुल मीन से होगा। जिस इंसान को वो प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है वही लीगली हकदार है उस प्रॉपर्टी के लिए, तभी तो हम बोलते हैं ओनर ऑफ अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन, उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है। व्हाट द पॉइंट? रॉन्गफुल गेन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। गेन होना प्रॉपर्टी का बाय अनलॉफुल मीन्स, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो पर्सन गेनिंग है ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। जिस इंसान को गेन हो रहा है वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, हकदार नहीं है उस प्रॉपर्टी के लिए, तभी तो हुआ है wrongful gain to him. And the best example is the thief of the property. Yes or no? Who has stolen somebody's property? So, got the point? Wrongful loss and wrongful gain. Yes? Any doubt? Now let us see gaining, losing wrongfully and gaining wrongfully का मतलब। गेनिंग रॉन्गफुली को याद करने की ट्रिक है ए आर रहमान। ए आर रहमान को गेन हुआ रॉन्गफुली, तो देखते हैं ए आर में क्या क्या चीज है। 2 थिंग्स आर देयर, एक्वायरिंग रॉन्गफुली एंड रिटेनिंग रॉन्गफुली। यानी गलत तरीके से एक्वायर करना और फिर उसको रखना भी, रिटेन करना, दैट विल बी कॉल्ड एज द मीनिंग ऑफ द टर्म गेनिंग रॉन्गफुली। गॉट द पॉइंट? लूजिंग रॉन्गफुली का ट्रिक इज, केडी कैंपस का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर बैनर्स लगे होते हैं स्पेशली इन मुखर्जी नगर एरिया, तो दैट इज द ट्रिक केडी। लूजिंग रॉन्गफुली मीन्स wrongfully kept out of the property, आपको प्रॉपर्टी से दूर रखा गया और साथ साथ में आपको उस प्रॉपर्टी का डिप्रिवेशन भी है, यानी wrongfully depriving of the property, that is called as the meaning of the term losing wrongfully. तो gaining मतलब acquiring as well as retaining, and wrongfully, and losing wrongfully मतलब wrongfully kept out of the property as well as wrongfully deprived of that property. अब देखते हैं section 24. Section 24 defines one of the mens rea का term, and that is, क्योंकि you know one basic maxim, जिसके maxim के basis पे पूरा हमारा IPC is based,
actus non facitorium, nisi mansitoria, जिसका मतलब होता है an act alone cannot be guilty in itself unless it is accompanied with guilty mind. यानी हमें accused का guilty mind देखना होगा, then only person will be made liable. तो guilty mind को we call it in a Latin term by the term mens rea. तो मेंस रिया तो पूरे आईपीसी में लिखा नहीं है, तो फिर पता कैसे करें कि आईपीसी में व्हाट इज द मेंस रिया फॉर मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड अदर ऑफेंस. तो देयर आर सर्टेन टर्म, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, नेग्लिजेंटली, फ्रॉडुलेंटली, मैलिशियसली, रेकलेसली. तो ये सारे टर्म हमें बताते हैं वॉलंटरली कि ये मेंस रिया है. तो एक मेंस रिया का टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 24 एंड दैट इज द डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो 3 मेंस रिया लगातार डिफाइन है. उसको याद करने के लिए देयर इज वन ट्रिक एंड दैट ट्रिक इज डफर. DFR. D stand for dishonestly, F stand for fraudulently, and R stand for reason to believe. These all are the form of mens rea. 24, 25, 26 ये है ट्रिक. DFR डफर. D stand for dishonestly, F stand for fraudulently and R stand for reason to believe. तो dishonestly देख लेते हैं पहले. dishonestly का मतलब, अच्छा बच्चे HP है ना, दिस वन यू नीड. कौन सा? वेट अ वाइल. You all must be knowing कि this is a crash course, तो teacher has to adopt the speed of Tejas, है ना, no way out. इससे भी पहले वाला ये write it quickly, जल्दी से लिख. और जब आपका एक टॉपिक हो जाए, अभी तो चलो यू आर रीडिंग, आई से कि एक बार पूरी बेयर एक्ट पढ़नी पड़ेगी सबको. इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में स्पेशली, यू हैव टू गो थ्रू द बेयर एक्ट के एवरी सेक्शन के थ्रू. यू नेवर नो कि चार्ज फ्रेम में केवल बस जजमेंट राइटिंग आती है छत्तीसगढ़ के मेंस में, तो आप कैसे लिखोगे जब आपने पढ़ा ही नहीं है कि आईपीसी में सेक्शन कहां पर है. तो दैट विल हेल्प यू. तो आफ्टर द टॉपिक इज ओवर, सब्जेक्ट इज ओवर, इट इज योर ड्यूटी टू रीड द बेयर एक्ट. उसके अलावा कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, कुछ भी नहीं रेफरेंस करना है, ओनली बेयर एक्ट. जस्ट वर्ड, सेक्शन कहां दिया है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट आया है या कोई चेंज हुआ है, दैट यू हैव टू डू, है ना. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर you ask the respective teacher, that person will be helping you. लेकिन cover to cover बेयर एक्ट प्रीलिम्स के लिए. और जजमेंट राइटिंग 2 पेपर ऐसा है जो कि अगर आप कवर टू कवर करोगे, then only it could be of great help to you. जो आपने मेंस में पढ़ा है वो तो 80% आपका कवर ही हो गया, only 20% is left जो बेयर एक्ट रीडिंग है. ये नहीं समझना कि वो 20% से पूरा 80% आएगा. नो, whatever you have read here 80 to 85% is covered. क्योंकि जो पढ़ा वो पूरा पढ़ लिया ना, उसका प्रीलिम्स ही पढ़ लिया, उसका मेंस ही पढ़ लिया. तो जो बच रहा है इट इज ओनली प्रीलिम्स एंड दैट विल बी 50 to 20%, नॉट मोर देन दैट. तो गो फॉर रीडिंग. इफ देयर इज एनी डाउट आईपीसी या अदर लॉ, मतलब मेरे लॉ में यू आस्क विद मी, अदर से यू आस्क विद द रिस्पेक्टिव टीचर एंड एवरीबॉडी विल बी हेल्पिंग यू. बट बेयर एक्ट पढ़ना छोड़ना नहीं है, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है इफ देयर इज इंटेंशन आइदर टू कॉज wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. और वर्ड है चोर. चोरी के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द मेंस रिया. चोर प्रॉपर्टी ले जाता है लेकिन ले नहीं जा पाता या उससे गिर जाती है, तो इसीलिए वर्ड है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बिकॉज इट इज रिटन और, या तो wrongful gain हो या wrongful loss to another person, not the and this they have asked. If the intention is caused wrongful gain to one person or another, it is said that person has done that act dishonestly. और क्या है wrongful loss और gain, अभी हमने पढ़ लिया. fraudulently समझते हैं, given in 25. fraudulently का मतलब है if there is any intention to defraud. अगर आपकी इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की तो बोला जाएगा कि आपने वो काम फ्रॉडुलेंटली किया. डिफ्रॉड का मतलब यू हैव प्रैक्टिस द डिसेप्शन. और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है कि क्या डिसीट इम्प्लिसिट है इन फ्रॉड, यू हैव टू से यस. क्योंकि अगर आप डिसेप्शन मतलब क्या,
प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन मतलब मेकिंग इनटू बिलीव समथिंग व्हिच इज अनट्रू एज ट्रू, किसी झूठ बात को सच बताना, यही तो होता है डिसेप्शन. इफ योर इंटेंशन इज सच देन इट इज सेड कि यू आर एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली एज पर सेक्शन 25. 26 टॉक्स अबाउट रीजन टू बिलीव. रीजन टू बिलीव का मतलब होता है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग. मतलब आपको श्योरिटी नहीं है बट द परिस्थिति इज सच दैट इज गिविंग अ सफिशिएंट इंफरेंस कि ऐसा हो सकता है. आप सब इज एक्वेंटेड विथ माई वॉइस. सपोज करो आई एम नॉट कमिंग, 1 महीने की 2 महीने की हैव टेकन लीव, जो रियली में नहीं होगा, ऐसे ही बस एग्जांपल है. तो एंड यू पीपल आर अटेंडिंग क्रैश कोर्स, लेट इट बी आप लिमिटेशन एक्ट का क्रैश कोर्स कर रहे हो और आपको क्लास के बाहर से आवाज मेरी सुनाई देती है एंड यू नो कि आई एम नॉट ऑन वर्क, आई एम हैव टेकन लीव. फिर भी श्योरिटी तो नहीं है कि आई विल बी देयर, लेकिन आपको गैस होगा ना, रीजन टू बिलीव तो होगा कि दिस इज द वॉइस ऑफ द मैम, शी माइट बी देयर. तो वही वाली सिचुएशन है रीजन टू बिलीव, व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग. अदरवाइज मतलब कुछ और नहीं हो सकता इसमें, कुछ और नहीं, बस केवल डिफ्रॉड की इंटेंशन. ठीक है, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग. मतलब अदरवाइज एक्टिंग विल नॉट कम अनलेस देयर इज इंटेंशन टू डिसीव. ठीक है, नाउ लेट अस सी कि अगर, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर सपोज करो इफ बच्चे व्हाट्स नेम, हाँ हाँ आपका यस यस यू, हाँ हाँ भावनी, इफ पावनी, ओके पावनी, वैसे नाम में क्या रखा है, काम में है ना, नाम में तो कुछ नहीं है, फिर भी पावनी इज देयर. और पावनी के पास एक सपोज करो एक सोने की प्लेट है और ये क्या करती है, 2 इंसिडेंट है. 1 इंसिडेंट इज दैट कि इसके पास एक डोमेस्टिक हेल्प है, उसे देकर जाती है. शी इज गोइंग ऑन, कहाँ जाना है घूमने के लिए, जल्दी बताओ, पढ़ाई कर ली अब घूमने जाना है, दिल्ली घूमना है, पोल्यूटेड एरिया, ओके है ना. मतलब जो बाहर से आएंगे उनको लग रहा है दिल्ली इज टू वन, बट ऐसा कुछ है नहीं है ना, हर जगह पोल्यूशन और हर जगह गार्बेज ही दिखेगा. ऐसे थोड़ी ना टैग मिला हुआ है वर्ल्ड पोल्यूशन, है ही. वी पीपल आर लिविंग इन द, ऐसा नहीं है बच्चे, आई डोंट फाइंड एनीथिंग. मतलब जो बेस्ट पार्ट क्या, घूमना. हाँ हो सकता है मेरे जैसे सब मोनोटोनस बनना भी नहीं है ना, गो फॉर घूमना अच्छा है. आई डोंट गो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी नहीं जाओगे. आई एम वेरी मोनोटोनस पर्सन, आपको ऐसा नहीं होना है, यू शुड बी गोइंग, है ना, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, पढ़ना भी चाहिए साथ में, है ना. दिस इज माई कि आई ऑलवेज से कि आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ना ही मिलता था. और माय पापा ऑलवेज सपोर्ट्स मी कि हाँ नहीं जाना है. माय मदर सेड कि एंटी सोशल बना रहे हो आप बेटी को. व्हेनेवर आई, मम्मी सेड कि आज जिनके यहाँ जाना है, आज शादी है, व्हाट आई डिड, आई सेड नो नो नो. और कुछ नहीं तो आई यूज्ड टू पुट सो मच ऑयल ऑन माय हेड कि अब तो मम्मी पक्का नहीं ले जाएंगी, बाल में बहुत सारा तेल लगा शादी वाले दिन. शी सेड ऐसे ही चलना है, आई विल नॉट अलाउ यू टू वॉश योर हेयर. कोई बात नहीं, मुझे मन तो होता नहीं था. तो वही वाली हैबिट अभी तक आ गई है. इफ सपोज पावनी इज देयर एंड शी वांट्स टू घूमने के लिए जाने वाली है एंड शी हैज अ गोल्डन प्लेट, तो ये अपने डोमेस्टिक हेल्प को देकर जाती है. और वो डोमेस्टिक हेल्प ले जाती है गोल्ड स्मिथ के पास, तो बोलते हैं अरे ये तो भाई 24 कैरेट गोल्ड है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड विथ नो इम्प्योरिटी. तो वो डोमेस्टिक हेल्प लेकर भाग जाती है. दूसरा सिचुएशन इज देयर कि वो जब जाने वाली होती है घूमने के लिए तो लॉकर में वेयर हाउस कीपर को देकर जाती है, स्टोर हाउस में रखकर जाती है. तो दूसरी सिचुएशन में भी यही होता है कि जो वेयर हाउस कीपर है वो ले जाता है गोल्ड स्मिथ के पास और गोल्ड स्मिथ बोलता है कि ये इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो वो लेकर वो भाग जाता है. तो इन दो सिचुएशन में व्हाट शुड बी द लायबिलिटी ऑफ दोज टू पर्संस, क्या हम दोनों को चोरी के लिए लायबल ठहराएं, डोमेस्टिक हेल्प वाले को भी एंड वेयर हाउस कीपर को भी, या नहीं. एंड योर आंसर लाइज सेक्शन 27 में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. अच्छा गोवा जाना है, अच्छा है ना, पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर जहां जाना होगा, है ना, आप सब जाओगे. हाँ नहीं जाना, मेरी तरह हो क्या, यू लाइक मी वांट टू गो, इट्स गुड. कोई तो मिला जो कह रहा है कि नहीं जाना है ना, वरना अदरवाइज सब बच्चे, यार आपको घूमना भी चाहिए, पीपल आर सो यंग, है ना, पढ़ाई भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस घूम ही रहे हैं. हाँ अच्छा सही है, तो मेरे जैसा ही है. आई डोंट वांट टू गो, और अभी तो बाहर ही रहना पड़ता है, घर में ही नहीं रहना होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है. समटाइम इट हैपेंस, व्हाट यू डोंट लाइक यू हैव टू डू, है ना, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ. 27 का आंसर आपको
27 का प्रोविजन आपको आंसर देगा इन दो सिचुएशन में, कि अगर कोई सर्वेंट लेके सामान भाग रहा है या किसी की वाइफ है, एनीबॉडी इज मैरिड है, मेल आई एम आस्किंग, अभी इमेजिन कर लेते हैं फॉर द क्लास कि ही इज मैरिड और इसके पास एक बहुत बेशकीमती कोहिनूर हीरा वाली रिंग है जो उसने अपने स्पाउस को दे रखी है, और ये जाता है घूमने के लिए कसौली, तब तक वाइफ का कोई एग्जाम्पल है, इलिसिट लवर है, उसको दे देती है, दिस इज बेस्ट गिफ्ट फॉर यू। आईपीसी में लिखा है इलस्ट्रेशन में नितिन की जगह, लेकिन कुछ और लिखा है, ए बी इज देयर, क्योंकि अगर अपने आप को विक्टिम और एक्यूज बनाओगे तभी समझ में आएगा, ए बी करके पढ़ोगे मोनोटोनस लगेगा, फिर कभी समझ में नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? टू मेक योरसेल्फ, ये नहीं समझना कि मैम ने एडल्ट्री करा दी है, फांसी पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो फिर भगवान की तो कसमें सब खाते हैं, भगवान जी को तो सबसे पहले है ना, सब उसी के भगवान के समय ऐसा नहीं किया, अल्लाह के समय ऐसा नहीं किया है ना, बट दैट इज नॉट द केस। कम बैक, जोक्स अपार्ट, कि अगर एक सर्वेंट के पास कोई चीज है या किसी के वाइफ के पास कोई चीज है या क्लर्क के पास कोई चीज है, if any property is lying in the possession of such person, either to a servant of a person or to a wife of a person or a clerk of a person, तो क्या माना जाएगा कि वो उस पर्सन के ही पोजीशन में है, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन। यानी जब नितिन की वाइफ को इसने अपनी वाइफ को इसने रिंग दे दी तो वाइफ के पास फिजिकल पोजीशन है, लेकिन हु इज अल्टीमेटली हैविंग द पोजीशन एज पर सेक्शन 27? नितिन। बच्चे नेम अगेन, भावनी। इफ भावनी ने सर्वेंट को दिया तो सर्वेंट के पास फिजिकल पोजीशन है, बट रियल हु इज दी हैविंग पोजीशन? ही। तो जब सर्वेंट लेके भागे या वाइफ लेके भाग जाए या क्लर्क लेके भाग जाए तो कौन सा ऑफेंस होगा? चोरी का ऑफेंस। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर वेयर हाउस कीपर लेकर भाग जाए तो चोरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी के लिए पोजीशन इज रिक्वायर्ड, जबकि वेयर हाउस कीपर को आपने एब्डिक्ट किया है पोजीशन, इंटरेस्टमेंट ऑफ द पोजीशन। नहीं समझ में आया बच्चे आपको? ये चीज आ गया? नहीं आया? कहाँ हो आप? अच्छा देखो, हाँ बच्चे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वाली बात तो नहीं है, नो नो नो, दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। पोजीशन तो दो तरीके का होता है, तो आपको पता है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब क्या? एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल। आप सबके पास बैरक है आईपीसी की नोटबुक, एक्चुअल पोजीशन ऑफ इट, घर पे होगी, लिमिटेशन है, सारे कॉन्ट्रैक्ट सबकी बैरक, ऑन दैट यू हैव कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। दैट इज नॉट द केस बच्चे। यहाँ पर ये है कि देयर आर टू ऑफेंसेस, वन इज थेफ्ट and one is criminal breach of trust. अभी जब पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस चैप्टर 17, देन आई विल लेट यू नो। थेफ्ट के लिए व्हाट यू नीड? पोजीशन चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में नहीं है तो वो चोरी का ऑफेंस नहीं होगा। इफ अक्षत को जब आ रहा था नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्लास करने के लिए, तो सीढ़ियों पे अभी 2000 की नोट मिल जाती है, आप उठा लेते हो, तो चोरी होगी क्या? नो, बिकॉज इट इज इन नोबडीज पोजीशन। उसको उठा के अगर आप यूज कर लेते हो तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन होगा। लेकिन सपोज करो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब हो रहा है? व्हेन यू आर अबडिक्टिंग द पोजीशन, यानी जब आप पोजीशन को त्याग रहे हो, इंटरेस्टमेंट ऑफ पोजीशन कर रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग द पोजीशन टू समवन एल्स। तो चोरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं? नेवर एवर, क्योंकि चोरी के लिए पोजीशन चाहिए और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पोजीशन नहीं चाहिए। तो व्हेन यू आर गिविंग दैट योर आर्टिकल टू अ वेयर हाउस कीपर, आपने पोजीशन क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, त्याग दिया, तो चोरी नहीं होगी, क्या होगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बट व्हेन योर सर्वेंट इज हैविंग, योर वाइफ इज हैविंग और योर क्लर्क इज हैविंग, तो इट विल बी टेकन इन योर पोजीशन, तो द अदर पर्सन विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इफ दे डिसऑनेस्टली रन अवे विद दैट प्रॉपर्टी। व्हाट द पॉइंट ईश्वर? कौन सा केस में? सर्वेंट, यस, सर्वेंट विल बी लायबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि सर्वेंट चोरी के लिए पोजीशन चाहिए। बहुत सारे लोग किस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे? इस वर्ड इंटरेस्टमेंट से। हाँ यस वाइकेरियस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे मतलब यू कैन नॉट अप्लाई, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बस एक 154 के प्रोविजन है आईपीसी में जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करता है, नॉट दिस। ठीक है, टॉट में आप पढ़ते हो ना, where a person has done the wrong but some other person will also be liable, master servant, servant गलती करे, इस सपोज करो बच्चे, व्हाट्स योर नेम? हाँ
दीप्ति कार से आई हुई है, जिसका सर्वेंट इज देयर, और सर्वेंट को पता है कि इसकी क्लास चलेगी 2:30 बजे तक, तो सर्वेंट 1 से 2:30 बजे वाले में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता है और जाके ठोक देता है किसी को, तो क्या दीप्ति विल बी ऑल्सो लायबल फॉर रैश ड्राइविंग? नो, बिकॉज दैट इज डन बियॉन्ड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वाइकेरियस लायबिलिटी में शी विल नॉट बी लायबल। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो, मान लो आप पहुंचे पंजाब में, कहाँ पे सेंटर पड़ता है, हाँ भटिंडा पड़ता है, अच्छा चंडीगढ़ मान लो आप जाते हो और आपको लेट हो रहा है, एंड यू आर आस्किंग दैट ओला वाला भैया को, भैया तेज चलाओ, जल्दी चलाओ, एग्जामिनेशन में बस 10 मिनट बच गए हैं, एंट्री नहीं देंगे, और फिर वो किसी को ठोक देता है, देन यू विल बी ऑल्सो बी लायबल। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे अंडर द वाइकेरियस लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, है ना, वो तो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो whenever a thief will be, मतलब थीफ का केस कब होगा? अगर these people are running, servant, wife और clerk, because it is taken in your possession, तो अगर ये भागेंगे तो चोरी का ऑफेंस होगा। I'll let you know जब illustration D और E अभी बताऊंगी in a theft, not in today's class, in the next class, क्योंकि उतना भी हो नहीं पाएगा। तो got this point 27 कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के पोजीशन में है तो माना जाएगा। नहीं बच्चे, दैट कोई भी डोमेस्टिक हेल्प हो, इट इज व्हाट नैना, इट इज योर सर्वेंट, तो सर्वेंट के पोजीशन में कोई चीज है तो वो आपकी पोजीशन में मानी जाएगी, यानी इट विल बी ऑलवेज द केस ऑफ चोरी, नेवर बी द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, 28 जाते हो ना पालिका मार्केट में, और बच्चे मुझसे नहीं ये हाँ अर्शिता, इफ शी गोज टू अ पालिका मार्केट और वहां पर जाकर एडिडास का लोअर 2000 वाला 200 में लेकर आ जाती है, वो हम सब जाते हैं, वहां सस्ता मिलता है। तो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, काउंटरफीट, सेम जैसा आर्टिकल पे दे विल बी गिविंग एंड दे विल बी सेइंग फैक्ट्री का आउटलेट है, मतलब इफ देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव, इमिटेशन हो रहा है विद द इंटेंशन और नॉलेज टू डिसीव, इट इज कॉल्ड एज काउंटरफीटिंग, है ना, नकली सिक्के, नकली आइटम। गॉट दिस पॉइंट? दिस इज गिवन इन सेक्शन 28 रिगार्डिंग काउंटरफीटिंग। डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऑफेंस के लिए, आई बिलीव नैना इट इज क्लियर टू यू, बहुत सारे ऑफेंस के लिए यू हैव दैट डॉक्यूमेंट वर्ड, और एग्जाम में लिस्ट देकर पूछते हैं कि क्या एक इंसान ने टैटू बनवाया अपने हाथ पे तो डॉक्यूमेंट होगा? हाँ, लेकिन सैंड पे घर बनाया तो क्या वो डॉक्यूमेंट होगा? जब जाते हैं हम समुद्र के साइड एंड रेत पे, नो, बिकॉज दैट इंटेंट दैट विल नॉट बी अ केस, है ना। क्यों? तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कब होता है। आप सब मैप बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, डायरेक्शन लिखा होता है, पीएलए का 212 इधर, 213 इधर, व्हाट आर ऑल दोस डॉक्यूमेंट। तो और सेम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन विल बी फाइंडिंग अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 3 में, दैट इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसा मैटर जो कि किसी सब्सटेंस पे यस एक्सप्रेस किया गया है, आइदर बाय द वे ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है? या तो अभी यूज करने की है या फ्यूचर में यूज करने की है एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर। इसीलिए रेत पे जब आप घर बनाते हो तो क्या योर इंटेंशन इज नॉट टू यूज एज एन एविडेंस मैटर, इससे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट। तो if anything, any matter which is expressed on any substance by means of letter, figure or mark, या combination of more of these, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए या तो अभी यूज करने की या फ्यूचर में यूज करने के लिए फॉर द एविडेंस पर्पस, देन इट कुड बी एन डॉक्यूमेंट। तो इफ आप जाओगे घर पे और उसके बाद आप प्लान बनाओगे कि एक बार जल्दी जल्दी से क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो गया तो आई नीड 2 दिन का टाइम फॉर रिवाइजिंग आईपीसी, 2 दिन का टाइम फॉर सीआरपीसी, लिमिटेशन के लिए हाफ डे इज रिक्वायर्ड, तो दैट योर टाइम टेबल इज द डॉक्यूमेंट। ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योर नहीं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इफ डॉक्यूमेंट इज देयर इन सेक्शन 20 नहीं पहले देखते हैं। देखो याद करने का तरीका है कि 27 में वाइफ के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें हैं तो नकली वाइफ भी हो सकती है याद करने के लिए। आई टोल्ड यू कि बहुत सारी एब्सर्ड चीजें आई हैव मेड इन ऑर्डर टू कीप इन माय माइंड, तो दैट विल हिट ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो नकली यानी काउंटरफीट बीबी कहाँ आएगी? वाइफ के बाद, तो 27 के बाद 28 में यू गॉट द काउंटरफीट। 29 में वी हैव सीन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है तो नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमें पढ़ना पड़ेगा,
तो वो जब पहले से नहीं होता है तो वी यूज टू ऐड बाय द अमेंडमेंट। तो 29A टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वही मतलब जो कि गिवन है इन द सेक्शन 21T ऑफ द आईटी एक्ट। ठीक है, देखते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपके एग्जाम में पूछा है, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज गिवन इन सेक्शन 30, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंस के लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। जैसे एक्सटॉर्शन में लिखा है कि डिलीवरिंग प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब जनरली अगर समझ लो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई लीगल राइट क्रिएट करता है, ट्रांसफर करता है, खत्म करता है, बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। व्हाट द पॉइंट? इफ आई राइट ऑन अ पेज पे कि आई एम प्रॉमिसिंग टू गिव 1000 rupees to Shivi on 19th of November and I put my signature, तो क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी? यस, बिकॉज दैट विल बी अ प्रॉमिसरी नोट। तो विल क्या होती है? विल मतलब अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। 31 में लिखा है विल मतलब वसीयत, वसीयत मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री याद है ना? द विल बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेस्टेटर, एंड द वन जिसके फेवर में होता है टेस्टेटी। तो इसीलिए लिखा है कि विल का मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 31। 32 टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्ट इंक्लूड करता है इलीगल ओमिशन। नॉट एवरी ओमिशन विल मेक द पर्सन लायबल, यही लिखा है सेक्शन 32 में कि हर एक्ट में इलीगल ओमिशन इज इंक्लूडेड। इसीलिए जब विकी ने नहीं बचाया ड्राउनिंग पर्सन को, who is drowning in front of him, he will not be liable as per section 32। और इसीलिए जहां जहां पे आईपीसी में आप एक्ट वर्ड पाओगे तो उसके अंदर क्या होता है? इलीगल ओमिशन ऑल्सो। सपोज करो इस निशांत ना, निशांत, हाँ, मृत्युंजय इज देयर, और मृत्युंजय जो है वो अपनी वाइफ को खाना नहीं देता है, एंड दैट पर्सन इज देयर, बस एग्जांपल है, एंड शी हैज रिड्यूस्ड टू हेल्थ। तो क्या हम मृत्युंजय के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की लायबिलिटी लगाएं बाय इलीगल ओमिशन? यस, क्योंकि मर्डर में क्या लिखा है? एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ। तो एक्ट के अंदर क्या है? इलीगल ओमिशन भी। एंड इफ ही इज द स्पाउस तो हिज ड्यूटी लाइज। तो ओम प्रकाश का केस भी है ना, वो स्टेट ऑफ पंजाब में, जहां पर एक हस्बैंड और इन लॉज ने ओमिट किया टू प्रोवाइड द फूड, एंड द वाइफ की स्टेज ऐसी हो गई थी शी इज नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम एंड ऑल। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो शी रैन अवे फ्रॉम देयर। तो क्वेश्चन इज कि हस्बैंड एंड इन लॉज के ऊपर कौन से ऑफेंस का चार्ज लगाएं? अटेम्प्ट टू मर्डर बाय इलीगल ओमिशन। सपोज करो इफ बच्चे निधि ने ईश्वर को, एग्जांपल है, एक चाटा मारा या सीरीज में 5 चाटे मार दिए, तो वो भी तो एक ही एक्ट होगा। तो एक्ट के अंदर सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। मान लो एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, और उस दिन मृत्युंजय अपनी वाइफ को पानी नहीं देता, तो सिंगल एक्ट ऑफ ओमिशन, या रोज खाना नहीं देता है, तो इट कुड बी अ सीरीज ऑफ एक्ट। तो सिंगल एक्ट हो सकता है और अ सीरीज ऑफ एक्ट, सिंगल ओमिशन हो सकता है और अ सीरीज ऑफ ओमिशन। दिस इज रिटन इन सेक्शन 33। नाउ 34 देखते हैं। 34 डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटैंटिव ऑफेंस, है ना, कोई भी सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता। इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस एंड मेनी टाइम दे हैव आस्क्ड दिस, क्योंकि 34 टॉक्स अबाउट एन इंस्टेंट ऑफ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी वो सिचुएशन है जहां पर मेन एक्यूज के बेसिस पे the liability of the others will be created, that is why it is called as constructive liability। and joint इसलिए क्योंकि सबका joint trial चलेगा under section 223 of the CRPC। तो only 3 instances are there in IPC which talks about joint and constructive liability, and that is section 34 which is common intention, 149 which is common object, and 114 is a situation of abatement। तो 34 देख लेते हैं।
34 में क्या लिखा है? एज आई टोल्ड यू कि डज नॉट क्रिएट। हाँ बच्चे, ओमिशन हमेशा इलीगल ही होगा। इट विल नॉट बी ओके, इट विल नॉट बी एवरी ओमिशन। एक्ट के आगे कभी भी इलीगल एक्ट नहीं लिखा होता है, लेकिन ओमिशन के आगे इसीलिए तो इलीगल लिखा है। वरना हम सब अगर मान लो कोविड की फर्स्ट लॉकडाउन थे और लेबर जाकर हमसे पैसे मांग रहे हैं एंड वी आर नॉट गिविंग टू हिम एंड समबडी डाई, तो हमारी लायबिलिटी हो जाती। इसीलिए इलीगल वर्ड इज देयर। अदरवाइज हर इंसान लायबल होता अगर वो किसी को खाना नहीं देता और कुछ भी नहीं देता तो, एंड इफ दैट पर्सन डाइज, इसीलिए वर्ड इलीगल इज रिटन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना बच्चे। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है लिमिटेशन की है, इट विल बी देयर इन 216, ठीक है 216 है ना ऊपर क्लासरूम में, वहां पर होगी। एंड नॉर्मल जिनकी आईपीसी चल रही है वीकेंड मैथ्स, दैट विल बी इन 217। तो 34 देख लेते हैं। 34 टॉक्स अबाउट कि जब एक क्रिमिनल एक्ट, क्या हुआ, एनी डाउट? whenever a criminal act is there, it is done by several persons in furtherance of the common intention of all, then it is taken as if done by that person with same guilty intention or mind। यानी जब भी एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर इट कुड बी एन ऑफेंस और अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट मतलब ऑफेंस या कॉम्प्लीमेंट्री कंडक्ट सेवरल पर्सन, यानी दो और दो से ज्यादा पर्सन किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब प्रायर एग्रीमेंट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं ना कंसेंसस एड इडम, वही वाली बात है कि जब मीटिंग ऑफ द माइंड। सपोज करो इफ टू पीपल, इफ दिव्या इज देयर एंड गौरी इज देयर, इन दोनों की इंटेंशन है कि मारने की राहुल गांधी को, एंड दे मीट एट अ पॉइंट, तो क्या हम बोले कि दिस इज द कॉमन इंटेंशन? यस, बिकॉज दिस इज द प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड। तो सपोज करो इफ दिव्या किल्स राहुल गांधी एंड गौरी guards her when she is killing, and another person is there, let it be अंजना, जिसने पैसे प्रोवाइड किए हैं फॉर बाइंग दैट आर्म्स एंड ऑल, तो दिस दिव्या विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। व्हाट अबाउट दीज पीपल? क्या हम इनको भी मर्डर के लिए लायबल ठहराएं फॉर अंडर सेक्शन 34? यस, बिकॉज दे हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। एनी डाउट? So active participation is the test to know whether a person is liable or not. So if any person who acts in the furtherance of the common intention, तो सारे के सारे person, each of such person will be liable in the same manner as if done by him alone. तो मर्डर केवल ये करेगी, but other will be liable, read with 34. 35 talks about similar intention. Similar intention वो situation है जहां पर common intention prove नहीं हो पाए, लेकिन simultaneous act is there, तो those who have joined with same intention and knowledge उनको हम बुक करते हैं अंडर सेक्शन 35। सपोज करो आप पर्सन एक्स इज देयर और इसको अर्नब ने एक शॉर्ट कट दिया, भूमि ने गन चलाई, भूमिका ने एक पतली सी लाठी से उसे हिट किया ऑन द हेड पार्ट, चिरंजीव ने उसे धक्का दिया एंड ही इज फॉलन, आकाश ने he has used a weapon which is used for cutting meat and all, उसको से हिट किया। ये नहीं पता कि whose blow has ultimately caused the death of the person, तो क्या हम सारों को other than the person जिसने बस हिट किया है, क्या हम liable ठहराएं for the offense of murder through similar intention? Answer is yes. तो if the several accused are there जिन पे की common intention prove नहीं हो पा रही है and they have act simultaneously on a person, those who have joined with same intention or knowledge, they all will be booked through section 35. हाँ several, yes several person, two or more person। और आपके एग्जाम में पूछते हैं सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में नंबर ऑफ पर्सन। कॉमन इंटेंशन में इट इज ऑलवेज 2 और मोर, कॉमन ऑब्जेक्ट में इट इज ऑलवेज 5 और मोर। जब अभी हम पढ़ेंगे ना तब आई विल टेल यू, या यहीं पे लेट मी टेल दैट, वहीं पे खत्म कर लेते हैं जॉइंट एंड नहीं, नो वी कैन नॉट से, नो नॉट एट ऑल, जॉइंट लायबिलिटी नो नॉट एट ऑल, इंडिपेंडेंट चार्ज। 149 देखते हैं, 149 क्योंकि मैंने बोला जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के 3 इंस्टेंसेस है, तो यहीं पे देख के वी आर एंडिंग दिस। तो
149 टॉक्स अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अल्टीमेट गोल विच अ पर्सन नीड टू अचीव। तो जब आप सेक्शन 149 देखोगे विच टॉक्स अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखा है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। तो अनलॉफुल असेंबली को समझने के लिए वी नीड टू सी सेक्शन 141। 141 अंडर चैप्टर 8 इट टॉक्स अबाउट कि एक असेंबली जो कि 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं उसमें, उसको कब हम अनलॉफुल असेंबली बोलें, उसको तब हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे अगर इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, इज एनी ऑफ द 5 विच इज एनुमरेटेड इन द क्लॉजेस। यानी शॉर्ट में यू कैन से इफ 5 और मोर पर्सन का अल्टीमेट गोल इज टू कमिट एनी ऑफेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज द अनलॉफुल असेंबली। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अनलॉफुल असेंबली बिगिनिंग से अनलॉफुल हो। It may be a peaceful assembly and subsequently turn into unlawful assembly. And who will be called as a member of unlawful assembly? Those who have joined with the intention to join. Suppose करो आपके एग्जाम में randomly syllabus change कर देते हैं। मान लो रातों रात आ जाता है कि 2 नया लोकल लॉ पंजाब में आ गया, 2 नया लोकल लॉ छत्तीसगढ़ में आ गया, and they are not giving time, और डेट भी दे दिया प्रीलिम्स का, only just 1 month का टाइम इज देयर। तो आप सब नाराज हो कि ऐसे रातों रात कैसे सिलेबस चेंज कर दिया, वैसे इतना कम है क्या, कम जो ऑलरेडी आर गिवन एक्स्ट्रा बर्डन। लेकिन डिस्पाइट सो मेनी ऑब्जेक्शन दे आर नॉट पोस्टपोंडिंग द डेट। तो आप सब ये डिसाइड करते हो यू विल बी गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर बट विल नॉट बी गिविंग द एग्जाम। हम सब प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द कमीशन फॉर कंडक्शन ऑफ द एग्जाम। लेकिन आप में से कोई एक बच्चा है जिसने सब पढ़ रखा है, उसको बस लोकल लॉ ही पढ़ना था, तो 1 महीना तो इट इज टू एनफ टाइम फॉर दैट पर्सन। तो वो भीड़ में स्टेशन पे खड़ा है and you people are protesting, about to protest, और वो भीड़ के नाते मतलब ना कि भीड़ इतनी है कि वो ट्रेन में जाकर उस पोर्ट से अंदर आ गया, भीड़ इतनी है कि you are not allowing him to go inside the examination center। तो क्या हम उस बच्चे को भी बोले पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली? नो, बिकॉज his intention is not to join that। तो if the intention is there either to join or to continue, then that person will be called as a member of unlawful assembly which is given in 142। and अगर 149 ये बोलता है कि अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर ऑफेंस करता है, तो जितने भी लोग उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, दोज हु ओनली हैव द मियर नॉलेज आल्सो, दे ऑल विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। सपोज करो आप सब ये डिसाइड करते हो कि मुझे मार दोगे क्योंकि जब टीचर नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, इतना कॉन्सेप्ट इतना जल्दी क्रैश कोर्स है, मैम इतना तेज क्यों बढ़ा रही है, इट माइट बी अ कंसर्न। So you decided that you'll be ending. One of you had decided that I'll be killing. Other said I'll be providing food, I'll be giving money. तो जो लोग बाहर बस केवल खड़े हैं, only physically present, not active participation, क्योंकि active participation है you are guarding, तो 34 लग जाएगा। If you are merely physically present, या those only who have the knowledge कि offense होने वाला है, क्या सबको हम बुक करें 149 में? Answer is yes. This is the situation of 149. 114 says that कि abatement का offense हुआ। abatement मतलब अभी थोड़ी देर में समझ लो, डिटेल में पढ़ेंगे when I'll be telling you chapter 5 का। abatement का मतलब होता है you are abating a person, यानी you are provoking a person to do any act. It is one of the way of abatement। तो अगर सपोज करो कि आपने जो है वो abate किया किसी को, और फिर उसके बाद let me take 2 people, कौन आना चाहता है जो नहीं आया एग्जाम में? बच्चे, आई हैव नॉट टेकन यू, आपको नहीं लाए? दीक्षा एंड अमीशा, दीक्षा एंड अमीशा आर देयर। सपोज करो इफ दीक्षा ने अमीशा को बोला कि तुम जो है वो जाकर मर्डर कर दो। किसका? राहुल गांधी। किसका? राहुल, एग्जाम्पल है, राहुल गांधी बस एक ही थोड़ी ना है, राहुल गांधी का है ना। एंड व्हाट दिस दे हैव डन, उसके बाद ये ब्रेक ले लेते हैं 2-3 दिन का। फिर उसके बाद जब ऑफेंस कर रही होती है अमीशा, दीक्षा इज मियरली प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, तो क्या दीक्षा को हम अबेटर के लिए लायबल ठहराएं या फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर? शी विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, रेड विथ 114, क्योंकि 114 इज अ सिचुएशन ऑफ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ये होगा कब? अबेटमेंट हुआ, अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ऑफेंस हो रहा है। ऑफेंस कब हो रहा है? आफ्टर द टाइम गैप। टाइम गैप इज एसेंशियल, अदरवाइज 114 नहीं लगेगा। टाइम गैप के बाद जब ऑफेंस हो रहा है तो द अबेटर, द वन हु अबेट्स, ही इज ओनली फिजिकली प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, ओनली फिजिकली प्रेजेंट, तो दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर द मेन ऑफेंस।
एज पर 114. व्हाट द पॉइंट? बच्चे समझ में आया? डाउट डाउट नहीं समझ में आया? देखो 114 ये सिचुएशन है नहीं बच्चे, इट क्रिएट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस. 114 क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस. ना those who joined with same intention or knowledge बच्चे, सचिदानंद, they will be only liable. डिफरेंट होगा तो डिफरेंट ऑफेंस के लिए. जैसे कि मान लो 6 लोग थे ना उस एग्जांपल में, तो एक ने बस हिट किया था. हिट करना और वहां पर कोई पत्थर वत्थर नहीं है, तो क्या हिट करना सिंपली अ सिंपल ब्लो, तो वो फिर ग्रीवियस हर्ट या हर्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंस, नॉट फॉर द मर्डर. तो दोज हु जॉइंड विद सेम इंटेंशन सचिदानंद, दैट विल बी लायबल ओनली, नॉट ऑल. ठीक है. तो 114 वो सिचुएशन है जहां पर एक इंसान ने अबेट किया. सपोज करो, व्हाट्स योर नेम बच्चे? दीप्ति को आपको मैंने अबेट किया कि जाकर यू वांट टाइम, पंजाब के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मार दो. ठीक है. फिर उसके बाद आपने 1 हफ्ते पढ़ाई करी और बोलते हो हाँ मैम अब मैंने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं मारने के लिए. व्हेन यू आर किलिंग दैट पर्सन, आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्पॉट एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मेरे ऊपर अबेटमेंट का चार्ज लगाया जाए या मर्डर का चार्ज लगाया जाए? तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर एज इफ आई हैव डन द मर्डर थ्रू सेक्शन 114. टाइम गैप आया, abated person is doing the offense in consequence of the abatement and abated is merely present on this. What is the point? ठीक है. I hope you got the thing. So we are done with 34, 35. 36 बोलता है, सपोज करो इफ हाँ टाइम गैप, yes because that is written in your provision is, बच्चे प्रोविजन में ही लिखा है, your provision says so. क्योंकि अगर टाइम गैप नहीं होता तो क्या होता? अबेटमेंट के लिए आई विल बी लायबल, नॉट फॉर द मेन ऑफेंस. दैट वाई द रेलेवेंसी ऑफ गैप इज देयर. आकाश, अगर सपोज करो मृत्युंजय अपनी स्पाउस को खाना भी नहीं देता और उसे मारता भी है, एंड दैट वाज एग्जांपल, दैट पर्सन डाइज, तो क्या किया उसने? पार्टली मर्डर किया बाय एक्ट एंड पार्टली बाय इलीगल ओमिशन. तो he will be liable for the offense of murder, क्योंकि 36 says that कि कोई भी एक्ट पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन दोनों से हो सकता है. ठीक है. Got the point? 37 says that कि जो भी इंसान इंटेंशनली कोऑपरेट करेगा वो सब की लायबिलिटी होगी फॉर द मेन ऑफेंस. सपोज करो राम रहीम इज देयर इन द इनसाइड द जेल, दैट रेपिस्ट बाबा, and two of you are there. Let me see some new ones. Pragati and Neeta, these 2 people are the jailers. तो क्या करते हैं? इनकी टाइम शिफ्ट है, 12-12 घंटे की ड्यूटी है. तो नीता अपने टाइम पीरियड में से खाना नहीं देती और प्रगति अपने टाइम पीरियड में से खाना नहीं देती. बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड. तो क्या हम दोनों के लिए लायबल ठहराएं? दोनों को लायबल ठहराएं फॉर द मर्डर? यस, दे हैव इंटेंशनली कोऑपरेटेड. दिस इज रिटन इन सेक्शन 37. अगर 38 में है कि अगर इंसान डिफरेंट इंटेंशन के साथ ज्वाइन करेगा तो दे विल बी लायबल फॉर डिफरेंट एक्ट. गॉट द पॉइंट? They won't be liable for the same act. 39 talks about another mens rea, which is the voluntarily, जो कि बोलता है कि अगर कोई भी काम किया गया है with the intention और with the knowledge और with the reason to believe, तो हम बोलेंगे कि voluntarily किया गया है. समझते हैं through the illustration. Which case में नहीं, डायरेक्टली बच्चे दे विल बी लायबल. 302 ओनली, नॉट रेड विद 37, ओनली 302. वो आएगी कहां से? रीजनिंग थ्रू 37. यू बट यू डोंट हैव टू राइट रेड विद. नहीं, एक इंसान है, सपोज करो इफ सचिदानंद इज देयर, और सचिदानंद जो है वो एक के घर में आग लगा देता है. ही हैज पुट एज हाउस ऑन फायर. और सपोज करो इस घर में एक जेड इनमेट रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, दिस पर्सन डाइज. तो क्या हम बोले सचिदानंद ने मर्डर कॉज किया है?
मर्डर तो कॉज किया है, दैट पर देयर इज नो डाउट, लेकिन हाँ लेकिन कौन से मेंसरिया से, इंटेंशन से? नो, क्योंकि अगर किसी की इंटेंशन होगी तो यूल बी डूइंग श्योर शॉर्ट एक्ट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया। तो अनलेस इसको पता होगा कि घर में है तब जलाएगा, देन ओनली इंटेंशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दैट इज नॉट द केस। तो यहाँ पर हाउ वी विल बी मेकिंग हिम लायबल? थ्रू दैट वॉलंटरली, क्योंकि अगर आप एक घर में आग लगा रहे हो जहां पर ह्यूमन ड्वेलिंग इज देयर, तो आपको नॉलेज तो है कि अगर कोई घर के अंदर मिलेगा दैट कुड बी अ फैटल फॉर दैट पर्सन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरली, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड इन योर एग्जाम दिस एग्जांपल कि इंटेंशनली मर्डर करा है, वॉलंटरली मर्डर करा है, या रीजन टू बिलीव, तो योर आंसर विल बी वॉलंटरली, बिकॉज ऑन नॉलेज पॉइंट यू विल बी मेकिंग हिम लायबल। 300 का क्लॉज 4, ठीक है। हाँ, लायबिलिटी सेम है, बस मेंस रिया का डिफरेंस है। मतलब एग्जाम में अगर आएगा तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, वॉलंटरली और इंटेंशनली। इंटेंशनली लिखोगे नॉट गेट द मार्क्स, पीटी में लिख कर आओगे गलत हो जाएगा, ठीक है। 40 टॉक्स अबाउट ऑफेंस, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज पनिशेबल इन आईपीसी, और स्पेशल लॉ का मतलब लॉ डीलिंग विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक यू डील विद द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यूएपीए एक्ट। लोकल लॉ इज गिवन इन 42, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, छत्तीसगढ़ के लिए लोकल लॉ, पंजाब के लिए लोकल लॉ। लोकल लॉ मतलब एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर लोकेलिटी। 42, 43 से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So this was all in this class. I believe you have got the thing. Again, good luck for your exam. We'll be meeting in next class. Thank you.